everyone, you're welcome and welcome back to my channel, and I am Arohi. So my half yearlies have started from today only. By the way, today is 17th and I had my maths exam today, which didn't go pretty well, but yeah, I know from inside that I am capable of solving the whole question paper and I can get full marks, but yeah, I can't get it because the paper was lengthy, so I won't get pretty good marks. I'm a bit sad, but I'm a bit happy too. I'll be discussing my maths question paper with you guys. I hope you find this helpful. Okay, so the question paper was of 80 marks, and firstly there are 20 MCQs, okay, to start with. And here goes the first question. So इसमें पता है क्या बोलता है, I guess I misread the question and मैंने smallest prime number, like 2 का and smallest odd number 3 का कर लिया LCM, and 6 आना था, but then I saw कि OMG ये तो मैंने गलत पढ़ लिया है, so the answer will be 18. इसमें like easily आप LCM इसका निकाल सकते हो, आप 12 को खोल लो प्राइम फैक्टराइजेशन से, 20 को खोल लो, आप निकाल सकते हो, 60 आना था। इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर जो भी शायद आंसर आ रहा था, then just you have to sum their exponents, so 2 plus 2 I guess 4. okay, इसमें like usually I always solve MCQs in the first 15 minutes, okay, जो कि reading time होता है, but like it takes a lot of time to solve, okay, like मेरा हल्का सा extra time लगता है। तो today I was like कि okay मैं MCQs लास्ट के लिए छोड़ दूँगी, पहले नहीं करने, तो मैंने कुछ कर लिए थे, कुछ छोड़ दिए थे, so मैंने छोड़ दिया था, and I don't know, and at last I didn't have much time, so I don't know, मैंने बस आंसर ए भी लिख दिया फ्री में, पता नहीं। इसका -1 I solved it, okay. इसका I didn't know like what this question is trying to say, I didn't know how to solve it, okay, मतलब it's not like I don't know how to solve it, but yeah, it was taking me time, so I was just like okay, जो भी मेरे को समझ आ रहा है ये आरोही तू वो कर दे। And then this question, I was going to take this answer, but the answer will be this only, I solved it. I was like considering all the scenarios. Now इसमें okay, आपको इसका b square minus 4ac is equal to 0 के ऊपर पुट करके निकालना था, तो I guess ये आएगा आंसर, ac is equal to b square upon 4, राइट, हाँ ये आना चाहिए, बिकॉज दिया हुआ है ना कि लाइक रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब 0 के इक्वल होती है वैल्यू। Now the fourth term of AB, I just calculated it and the answer will be this, I hope. Well, I didn't have time to calculate this, so I don't know, जो भी मैंने option I guess इसका टिक कर दिया, I don't remember. Same goes with this. I don't because I didn't have to solve it, bro. या फिर पता नहीं, I don't remember. इसमें तो इसका भाई सामने दिख रहा है कि like AB upon DE upon AC upon DF, so this will be the answer, because 2/3 4/6 will be, जब कट हो जाएगा so 2/3 आएगा, कट हो गया, देखो मैंने किया भी है कट। And now 13/1, इसका I don't know रेशियो I guess 1:2 आएगा, फिर 2:1 आएगा, मैंने सॉल्व किया था ये। Same goes with this. Okay, first when I looked at the question I was like OMG ये क्या पूछा है, but then आपको बस x की वैल्यू इसमें पुट करनी थी, स्क्वायर करना है उसको, देन y की वैल्यू पुट करके इसका स्क्वायर करना है, जो भी आंसर आएगा r² आएगा, हाँ r² आ रहा था। हाँ, इसमें भी आपको क्या बोलते हैं, -5 को आप इधर ट्रांसपोज करोगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था उसको भी ट्रांसपोज करोगे, तो पता नहीं कुछ तो होना था, हाँ, तो द आंसर विल बी दिस 4/3, आई रिमेंबर यही था आंसर। एंड देन दिस आई डिडंट हैव टाइम टू कैलकुलेट इट, ओके, बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज आई वाज पैनिकिंग, आई कुडंट डू इट, ओके, सब मैंने पता नहीं इसका जो भी टिक कर दिया, आई गेस 12 15 13 आई डोंट रिमेंबर। इसका √39 आना था, लुक एट दिस, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, फिर इसमें पाइथागोरस लगेगी, यू कैन सी लाइक 5 and 8 आपको गिवन है, आपको थर्ड साइड निकालनी है, तो पाइथागोरस के थ्रू ये मैंने निकाला था। एंड देन इसमें आई डोंट नो, मैंने लाइक डायग्राम बनाया, पता नहीं मैंने कुछ तो किया, एंड इसका आंसर आई डोंट रिमेंबर क्या आ रहा था, बट हाँ मैंने कुछ तो किया था, इसको भी कुछ तो मैंने लगाया था, आई डोंट रिमेंबर। एंड वेल इसमें असर्शन एंड रीजनिंग लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही मैं कर रही थी, बट पता वही मैं सोचूँ कि इसका लाइक इतना अजीब सा क्यों आंसर आ रहा है, एंड देन लाइक आधा पेपर मेरा निकल गया, और फिर मैम बताती हैं कि ओके बच्चों इसमें कुछ करेक्शन है, और ये एक्चुअली मैं यहाँ पे छूट रखा था। देन मेरा माइंड में क्लिक हुआ, OMG अब समझ आया मेरा क्यों नहीं आ रहा था आंसर, इसका तो मैंने कर दिया, करेक्ट रीज़न था या फिर पता नहीं ये फॉल्स, आई डोंट रिमेंबर क्या था, इसका भी मैंने कर दिया।
ये तो ट्रू ही था और ये भी मैंने सॉल्व किया था, कुछ सॉल्व किया था. ओके, नाउ कम्स द सेक्शन बी. फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial this. आपको पहले इस वाले पॉलिनोमियल के आप जीरोस निकाल लो, फिर उसका रेसिप्रोकल करके फिर वो जो फॉर्मूला था ना पॉलिनोमियल निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स देन इनटू में अल्फा इनटू बीटा, वो वाला फॉर्मूला पुट करके आपका पॉलिनोमियल निकल जाना था. आपको पहले इसकी जीरोस निकालना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, फिर वो जो रेसिप्रोकल करके जीरोस आएंगे उनको इस वो फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हो पॉलिनोमियल. इसमें हाँ, इसमें मैंने क्या किया था, इसको सॉल्व किया था k+4 ये जो है ना, इसको फिर इक्वेशन बनाई थी, फिर उसके इजीली आपने रूट्स निकाल लेने थे. इजिकल देखो इसमें दे रखा है हैज़ इक्वल रूट्स, तो इजिकल टू के जीरो में पुट करके देना था. भाई क्वेश्चन में आपको लाइक अच्छे से पढ़ना है, जो कि मैं कई बार नहीं पढ़ती हूँ, बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ओके, इसमें लाइक मैं निकाली थी, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ इसमें आप निकाल लिया था, इसमें मैंने निकाली थी, आई डोंट रिमेंबर हाउ. इसमें दिस इज सिमिलर टू अ क्वेश्चन इन NCERT. ओके, बट इसमें एक्चुअली में NCERT में ऐसे 0 डिग्री नहीं दे रखा है, NCERT में कोई वैल्यू दे रखी है, फिर आपको लाइक 0 डिग्री लाइक उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, एक एंगल में कन्वर्ट करना है. सो इसमें आई विल लाइक ओके कैसे करेंगे, बट हाँ आई डिड इट एंड आई डोंट रिमेंबर. वही इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि आपको a+b इसका कुछ अलग से आपको निकालना पड़ेगा, इसका और अलग से कुछ निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वही आपको इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप निकाल सकते हो a एंड b की वैल्यू ईजिली. या फिर अगर आपको ये वैल्यूएशन ईजी लग रहा था आप ये कर लो, मुझे तो मेरे हिसाब से तो ये ईजी था, सो आई डिड दिस वन. वेल इसमें भी आपको डायग्राम बनाना है एंड इसमें आई गेस पाइथागोरस लगी थी इस वाले सर्कल्स चैप्टर में लगनी है भाई. लाइक इवन वन क्वेश्चन आई रिमेंबर सर्कल्स का जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लग रहा है, जिसमें हीरोज फॉर्मूला यूज़ होगा. कैन यू बिलीव इट? पता नहीं एक चैप्टर में कितने सारे मिक्सचर है चीज़ों का. इसमें आई न्यू होगी ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे. भाई ये तो पूरा लाइक रटा पड़ा है, जिसे कहते हैं ना टिप्स पर है इसका आंसर. तो मेरे को या ऑब्वियसली आई डिड इट, इसमें क्या ही करना होता है. देन इसमें आपको सेम इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन बनानी है ना, लेंथ एंड ब्रेथ की, इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के. एंड देन सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन के थ्रू आप निकाल सकते हो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें मैंने ये वाला प्रूव किया था. ओके, आई गॉट स्टक एट वन पॉइंट बट हाँ आई समहाउ सॉल्व्ड इट. ये आई गेस ये NCERT का ही क्वेश्चन है दिस वन, सो इट वॉज प्रीटी गुड. नाउ कम्स दिस, यू नो लाइक आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें आपको लाइक सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा. लाइक एंड यू माइट गेस कि लाइक मतलब ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रही इतना ईजी सा क्वेश्चन. इट इज़ बिकॉज दैट आई मिसरेड दिस क्वेश्चन एंड आई थॉट दीज आर द कोऑर्डिनेट्स एंड वेल या आई डिडंट हैव द टाइम टू सॉल्व दिस फॉर टू इन ऑर्डर टू गेट द कोऑर्डिनेट्स एंड देन यूज सेक्शन फॉर्मूला टू गेट द फाइनल आंसर. सो वेल या एक और क्वेश्चन स्वाहा. नाउ कम्स दिस प्रूव वाला क्वेश्चन. इसमें आपको कुछ नहीं करना था. लाइक 2 ट्राइंगल्स आपको दे रखे हैं, उनके मीडियन बता रखे हैं, मीन्स ये और ये इक्वल होंगे और ये बता रखे दोनों सिमिलर है. तो सिंस ये और ये इक्वल है, ये और इक्वल है, तो कुछ तो था कि लाइक ट्वाइस आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो कुछ ऐसे कट हो जाता, तो फिर लाइक आप इजीली प्रूव कर सकते हो. दिस वॉज नॉट अ बिग डील. एंड नाउ दिस वन, ये NCERT का क्वेश्चन है. लाइक मैं पता नहीं, हाँ सो रोम्बस ईजिली हाँ प्रूव कर दिया था मैंने, ऐसा कुछ नहीं था. भाई ये आपका रोम्बस है, उसमें आपका सर्कल है, तो आपको क्या करना था, यहाँ पर ये वाली थ्योरम यूज़ होनी थी कि लाइक इक्वल लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स, राइट. ये वाला प्रूव होना था. फिर इन दोनों को प्लस करके बहुत लाइक है पूरा 1 होल पेजेस के आंसर है इसके. नाउ कम्स द सेक्शन D एंड नाउ दिस वन. यू नो व्हाट, आई न्यू दिस आंसर एंड प्रिटी वेल. यू नो आई कैन जस्ट सॉल्व इट इन माई फिंगर टिप्स. ओके, जो भी है आई कैन ईजिली सॉल्व इट. But you know, I don't know how, but this is the question number 32, but I wrote 33 and I just forgot that this type of question exists in my question paper. I just forgot. Okay. फिर now moving on to question number 33. So one more question goes swaha. Now moving to question number 33. This one is similar to the quadratic equation में like वो वाला है ना, 4th पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन में 4th पार्ट, वो ट्रेन वाला कि अगर लाइक 8 किलोमीटर लेस होगा तो 2 घंटे ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेंगे. आई होप गेस उसके सिमिलर है इसकी इक्वेशन. आई गेस मैंने बना ली थी एंड आई होप द आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, इसमें भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा. नाउ कम्स दिस, आई एक्चुअली सॉल्व दिस वन एक्चुअली. ओके, मैंने ये वाला सॉल्व किया था. हाँ, मेरा आई गेस 10√3 वैल्यू आ रही थी एंड आई गेस वो करेक्ट है, यही आ रही थी शायद इसमें. इट्स ईजी ना, लाइक ऐसा इट्स नॉट अ बिग डील.
नाउ कम्स दिस, मैम टोल्ड अस कि भाई ये वाली तो आएगी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए, एंड वेल या, बट आई डिडंट रिमेंबर कि लाइक उसको स्टेट कैसे करना है, लाइक लाइन बाय लाइन. आई ऑब्वियसली नो वट द थ्योरम कन्वेज, बट या आई डिडंट रिमेंबर बाय वर्ड. सो वेल, या जो भी है मैंने लिख दिया किसी तरह. आई होप मैम ना मार्क्स काटे. बाकी प्रूव कर दी इजली. वही वो एरिया वाला बहुत अजीब सा है, वो प्रूफ उसका बहुत अजीब है. आई नो दैट, राइट. नाउ कमिंग टू द केस बेस्ड वंस. These are pretty good, okay? Like if you have to score marks and you don't know these questions, so you can do the case based firstly. इसमें like I didn't know what this question is trying to ask. Like मतलब ये कोई question भी होता है? OMG. So like I guess मैंने लिखा zero, like zero कह रही हूँ. U, like इसकी shape U है I guess, and like downwards parabola. मैंने शायद ये लिखा था. आई होप ये वाला तो सही होना चाहिए, डाउनवर्ड्स पैराबोला. एंड आई नो यू नो टू राइट द अल्फाबेट यू इज प्रीटी स्टूपिड, बट कोई नहीं. 2 zeros भाई इजीली यू कैन सी कि एक्स एक्सिस में यहाँ पे 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है, तो ये दोनों जीरोज होंगे. इसलिए तो केस बेस बहुत मस्त होते हैं, लगे मस्त चुटकी बजाते ही आ जाते हैं. नाउ कम लाइक इसमें मैंने किया था ये वाला, वही x-3 के इसको आइडेंटिटी से खोला एंड देन पूरी वो बनाई पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर वही उसके जीरोस फाइंड किए मैंने ईजिली. नॉट अ बिग डील अगेन. नाउ कम्स दिस में क्या आप इसमें d कैसे निकाल सकते हो. तो भाई इसकी इक्वेशन बनानी होगी. लाइक 6th ईयर का बता रखा है. सो लाइक a + 5d = 16,000 एंड वही आपको 2 इक्वेशन बनानी है. देन यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, एंड थ्रू दिस इक्वेशन बनाने की वजह से आपको ये भी आंसर मिल जाएगा एंड इसका भी आंसर मिल जाएगा ईजिली. ये a पूछा है, इसमें d पूछा है, एंड देन इसमें सम पूछा था. ईजी. एंड वेल यू नो जब ये वाला केस बेस्ड होगा ना, लाइक इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि लाइक ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे. सो लाइक इसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े अजीब से है. लाइक एक ग्राफ जो भी दे रखा है ना, दिस इज नॉट गुड, ओके, ये सही नहीं है. सो वही मैं सोचूं मेरा आंसर इतना अजीब सा क्यों आ रहा है. देन वी गॉट टू नो कि ओके देयर इज अ करेक्शन इन दिस क्वेश्चन, एंड देन मैम ने बताया कि लाइक इसके कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली में कौन से. एंड यू नो okay, so what is the type of quadrilateral? So you know this question carries 1 marks only, but you know that the calculation it needs is this much. लाइक एक साइड का आपने कैलकुलेट किया, फिर एक साइड का, फिर एक साइड का, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर एक साइड का. देन यू हैव टू यू नो लाइक यूज दिस फॉर्मूला टू गेट इट्स डायगनल्स ऑल्सो, ओके, क्योंकि सिर्फ साइड्स के पता नहीं, आपको डायगनल्स भी देखने पड़ेंगे. एंड देन आई गेस रेक्टेंगल आएगा इसका आंसर, ओके. सोच लो 1 मार्क्स ले. हाँ, आपको कितनी मच कैलकुलेशंस करनी है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज प्रीटी इजी यार. लाइक 1 सेंटीमीटर दे रखा है = 10 किलोमीटर. एंड नाउ यहाँ से देखो एक्स एक्सिस से 7 सेंटीमीटर दूर है, ओके. सो 7 × 10 70 किलोमीटर. फ्यू. एंड नाउ कम्स दिस क्वेश्चन. वेल ये वाला क्वेश्चन मैं लाइक आई वॉज जस्ट सॉल्विंग इट एंड टीचर वॉज लाइक ओके आरवी गिव इट टू मी. मैंने कहा ठीक है. वो मेरे से बेसिकली पेपर छीन लिया गया. एंड यू नो वट, ओके, सो दिस वॉज माई क्वेश्चन पेपर. ओके, आई होप इट हेल्प्ड यू अगर आपके हाफ ईयरलीज आने वाले तो. Okay, so the conclusion is कि the question paper was not hard for me, but it was actually lengthy because you know इन लोगों ने सही वेटेज नहीं दी थी क्वेश्चंस के हिसाब से. लाइक जिस टाइप के क्वेश्चन थे उसके हिसाब से उसकी वेटेज नहीं थी. जो 3-4 मार्क्स में से आपको पूछे जा सकते हैं, जो 3-4 मार्क्स रखते हैं, जो 3-4 मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेशंस है उनके अंदर, वो उनको आपने 1 मार्क है फिर 2 मार्कर्स में दिया. नॉट गुड. एंड यू नो मैंने उल्टा आज लाइक मैंने सोचा था कि मैं स्टार्टिंग से जल्दी जल्दी करूँगी ताकि मुझे लास्ट में रिवीजन करने का टाइम मिला. लाइक कुछ कई बार होता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए, बट गेस व्हाट, मैं स्टार्टिंग से इतनी जल्दी जल्दी अपनी फास्ट राइटिंग लिख रही हूँ एकदम ऐसे मस्त एंड स्टिल मेरे क्वेश्चंस छूट जाते हैं बिकॉज इतना लेंथी है पेपर. लाइक सब बच्चों, सब हर एक स्टूडेंट का यही फीडबैक था इस क्वेश्चन पेपर को लेकर. लाइक सबके क्वेश्चन छूटे. मैं जनरली क्वेश्चन छोड़ना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट व्हाट कुड आई डू. मैंने बस okay, so well yeah, that's it for today's video. इतनी ही ranting हम कर सकते हैं बस. Bye bye. And if you like my video, if you find my video helpful, please subscribe to my channel and give it a big thumbs up. Bye. The way I have my SST exam the day after tomorrow.